First I will be telling you how to approach this exam and all. It will be of nearly 15 minutes. Then after 10 to 15 minutes you can ask your all doubts. Okay, so first let me give you just a brief about me. So basically guys, regarding first you should know कि UGC NET, many people are too much confused कि UGC NET में who are eligible and who are not eligible. Okay, so regarding UGC NET, the only condition UGC NET has kept for you that you must be enrolled in masters, MA or MSc economics. For economics, for other subjects. Means if you are in first semester you can write the exam and you can clear the JRF, as I have cleared JRF in my first semester. And after that in 2017 itself, then again in 2019 when it became online, then in online mode I have also cleared. Okay, so Madhu, you are little late, right? It's okay, no problem. This is basically orientation class. This class we will talk about basically syllabus, approach, and what are the different ways that we have to proceed, especially for the economics. Yeah, coming back to the just introduction what we were doing. So you can clear JRF in the first semester itself, and this JRF is valid for 3 years. Means after JRF, within 3 years, if you take admission anywhere in PhD, you will get scholarship. Currently scholarship amount is 31,000 and very soon it will be nearly 37,000 per month. But if you stay outside the hostel in big city, you will be given 10,000 extra HRA. So altogether it's above 45,000 per month scholarship for the JRF. JRF scholarship is very, very important. Then only you can do your research and other things, because JRF is basically when you join PhD, it's almost 23-24 years. So you have to also support your family, and you have to also, you have different responsibilities. That's why government is giving a good amount of money. Apart from the research, you can also support the family. That is the intention what I found. Now coming to the basic thing, one thing very clear, that in the first semester itself you can clear JRF. And coming to the NET, if you miss by few marks, you couldn't get the NET JRF, you can get NET, and NET is lifetime valid. Okay, lifetime valid. NET is national eligibility test to become assistant professor. If you want to become assistant professor, NET is must. And JRF means JRF is equals to NET plus money. Okay, money plus NET is equals to JRF. NET is only NET, no money in the NET. Clear? Any doubt so far? Because many people have so many doubt regarding such things कि sir I am eligible in first semester or not. तो इतना आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट कमिंग कि सर इसका सिलेबस क्या है और इसको अप्रोच कैसे किया जाए. पीपल हु हैव क्लियर्ड मास्टर्स एग्जामिनेशन, MA और MSc और CUET एग्जामिनेशन, almost 60 to 65% syllabus is almost same. Yes, if you have prepared very good CUET, so you are almost ready for the NET. Okay, just put extra force for paper 1, because paper 1 is there and paper 2 is there. Paper 2 is economics, which is of 100 marks, 100 question 200 marks, and paper 1 is of 50 questions 100 marks. Here basically if you do PYQ, because teaching aptitude they ask, basic polity they ask, basic environment, basic current affairs, and 4-5 DI data interpretation or maths kind of questions they ask. Okay, तो इतना आपको पता होना चाहिए. Now coming to important things कि sir as I teach for economics, so I will be better to guide you for the economics. I may not tell the specific things about paper 1, but paper 1 में मैं आपको दो ही सजेशन दूंगा. One, you can follow Madani book, KVS Madan, I think green color or some color, and PYQ you do it diligently, and follow some important YouTube channel topic wise. Okay, topic wise syllabus, that is for the paper 1 that I can guide you. In paper 1 if you score above 30, तो it is very good catapult for the JRF. ठीक है, पेपर 1 का यही खेल है. पेपर 2 की मैं बात करता हूँ, because in paper 2 what I found कि there is a lack of material, there is a proper guidance. So I thought कि I will guide you with the help of books. Apart from my class lecture, if you read basic books supplemented with PYQ and basic test series, तो definitely topic wise I will provide. Definitely NET नहीं, you can get even JRF in very first attempt. But the thing is that you have to be very much regular. UGC syllabus, this is official UGC NET syllabus. I have copied it from there. So how to score out of 100? If you are scoring 70 plus something, 72, 74, 78 like this, 70 plus from the general category, I am talking mainly general category. If you aim for general category, for other category like ST, SC, OBC, you can definitely clear, because EWS, because these category has relatively lesser cutoff than you are, that is unreserved category. This time I don't know what happened, 62.3% or 5% was the cutoff for JRF only. Very, very less this time. I think it is lowest in 7 years as far as I remember.
I have been following net JRF from 2016-17, so that I can tell. तो let us see कि how to proceed. So UGC net JRF paper 2 economics का जो पेपर है, it has given paper 2 10 topics. They have divided 10 topics, but we will not divide into 10 topics, we will divide into 5-6 topics. First let's into the topic. First is microeconomics. माइक्रो में सबसे पहले आता है आपका कंज्यूमर थियरी, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर, व्हाट वी आर आई थिंक करेंटली डूइंग इन द क्लास ऑल्सो. देन कम्स डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी एटीट्यूड, जो जिसमें कि रिस्क एवर्सन और रिस्क लवर वगैरह हम लोग पढ़ेंगे. फिर आता है फैक्टर प्राइसिंग. व्हेन वी स्टडी मार्केट ना, अंडर मार्केट वी विल स्टडी फैक्टर प्राइसिंग. थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, यह इसी का पार्ट है. जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इट वाज गिवन बाय वॉलरस. बेसिकली वी रीड हियर वॉलरस and 2x2 एजवर्थ बॉक्स, 2x2 एजवर्थ बॉक्स. फिर हम यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम भी देखते हैं. देन यू हैव, दिस इज द बेसिक फॉर द माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हाट आई फाउंड कि आई टीच इन डिफरेंट वे. फर्स्ट वी डू कंज्यूमर थियरी, then we do production theory, then we do market. Here they have not written specifically market. Anybody can see? No, they have not written. But this does not mean कि they won't ask questions from the market. Definitely they ask. I will share the question also, don't worry. Just after 5 minutes I will share the PYQ and we will make plan accordingly. So market there are mainly 4 kinds of market. Perfect competition, imperfect competition में आपका आ जाएगा again monopolistic, monopoly and oligopoly. And in between again we will see different Baumol के मॉडल थे या फिर और भी एरोज वगैरह दिए थे, that we will see topic wise, no need to worry. So this is given for the micro. For macro they have given national income, consumption function, determination of input and output. This is very important. If it is written determination of output and employment, it covers all 5-6 major school of economics, that is classicals, Keynesian. See, they have not written separately classical, Keynesian, monetary. Then you have can somebody remember the chronology? I presume कि you guys have watched macro lectures. Anybody? Here we have few people. Anyone? Yes sir. Yeah, please Madhu tell me. बोलिए सर. फिजियोक्रेट्स. यस, फिजियोक्रेट्स. फिर उसके बाद मर्चेंटिलिस्ट. मर्केंटलिस्ट. पहले मर्चेंटिलिस्ट है, फिर उसके बाद फिजियोक्रेट्स है. यस, ट्रू. फिर क्लासिकल्स है. फिर मॉनेटरिस्ट है. फिर उसके बाद न्यू क्लासिक्स होंगे. यस, ओके, गॉट इट. यस, ट्रू. टर्न ऑफ योर माइक. या इसके बाद क्या है, मॉनेटरिस्ट के बाद आपका जो है, आपने एक चीज मिस कर दिया, क्लासिकल के बाद आपका आता है केंसियन. ठीक है, केंसियन के बाद आएगा मोनेट्रिस्ट. मोनेट्रिस्ट के बाद हम पढ़ेंगे, वी विल नॉट स्टडी नियो क्लासिकल बिकॉज नियो क्लासिकल हैज मार्जिनल अप्रोच, दैट इज द पार्ट ऑफ ग्रोथ मॉडल, बट वी विल स्टडी फिलिप्स कर्व. देन वी इन मोनेटरी वी विल कर्व फिलिप्स कर्व. देन वी हैव ऑलरेडी डन सच थिंग्स. न्यू क्लासिकल मीन्स रेशनल एक्सपेक्टेशन एंड आफ्टर दैट न्यू केंसियन. तो इसमें आपको सारा एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, इनकम कैसे होता है, पॉलिसी इफेक्टिवनेस क्या होता है, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी अंडर द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम. देन इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड दिस फिलिप्स कर्व. Then you have statistics and econometrics. It has very limited topic and the important thing is that they ask exactly from the given syllabus. This year from statistics I think 3 questions were there and from econometrics I think 5 to 6 questions were there. That too directly from the topic. All 3 questions this year from probability theory. I didn't find any question from sampling. Then linear regression model है, statistical inference है, वही hypothesis testing जो करते हैं, null hypothesis वगैरह. फिर है descriptive statistics. तो descriptive statistics थोड़ा difficult होता है, इसको हम लोग करेंगे डिटेल से. फिर आपका मैथ्स आ जाता है, differential calculus application. फिर वही optimization का प्रॉब्लम है. ठीक है, यही 5-6 टॉपिक है. Here they ask question direct, they don't ask tough question. So it is not a big deal to do. PYQ के मदद से हम इसको easily कर सकते हैं. And people who are facing lots of problem in such topics, please do all these topic wise, make notes, do PYQ and follow the other theoretical portion so that कि you can compensate these question in the form of theory. आप theory कर लेंगे तो काम चल जाएगी. मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स भी वही है जो पीजी इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग पढ़ते थे, इंट्रेंस के लिए ऑलमोस्ट वही है. वही डिफरेंस इक्वेशन वगैरह है, सेट है, फंक्शन है, सीक्वेंस सीरीज है, लीनियर अलजेब्रा है, वेक्टर स्पेस है. These are basic topics. I think these topics are common to if you were preparing for a masters in economics in trends. Now coming to international economics. International economics का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है. एंड आफ्टर दिस विल ऑल्सो टेल द बुक. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में वही बेसिक कंसेप्ट होते हैं, क्या होते हैं ट्रेड, क्यों होता है ट्रेड, थियरी ऑफ ट्रेड है. बेसिकली थियरी ऑफ ट्रेड वी विल स्टडी इन 2 phases. वन इज है क्लासिकल ट्रेड थियरी जिसमें कि आपको कॉम्पेरेटिव एडवांटेज और एब्सोल्यूट एडवांटेज वगैरह पढ़ते हैं. देन वी स्टडी मॉडर्न ट्रेड थियरी जो कि हेक्सर होल्डिंग से लेके आपका
जितने भी हैं न्यू ट्रेड थ्योरी हो गए, इंट्रा ट्रेड थ्योरी हो गए, प्रोडक्ट साइकिल मॉडल हो गए, ठीक है, ये सब सारा इसमें हम देखेंगे। देन कम्स गैट, WTA, रीजनल ब्लॉक्स। रीजनल ब्लॉक्स में भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ फ्रीडम होते हैं एंड इट हैज़ टू बी एसोसिएटेड विथ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से रिलेट करके हम इसको पढ़ेंगे। देन इंटरनेशनल ट्रेड में वही इम्परफेक्ट कंपटीशन कैसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, बिकॉज आफ्टर दिस देयर इज अ कंसेप्ट इंट्रा ट्रेड। यहाँ से इंट्रा ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेड भी होगा, इंटर एंड इंट्रा। देन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में बेसिकली मेनी पीपल रीड इट एज ए पार्ट ऑफ मैक्रो, तो बट हियर यू कैन डू मार्केट फेलियर, यह माइक्रो का भी पार्ट है। देन कम्स पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स में कोई कोई पब्लिक फाइनेंस भी बोलते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पब्लिक फाइनेंस आर रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन पब्लिक फाइनेंस आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फोकस ऑन इंडियन पब्लिक फाइनेंस। डायरेक्ट टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, रेगुलेशन ऑफ मार्केट है, मार्केट फेलियर है, क्या क्या रीजन है, फ्यू रीजन है, जैसे आपका एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो जाता है, फिर पब्लिक गुड है वगैरह वगैरह, दैट वी विल सी। बजट मल्टीप्लाइड, दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन इन मैक्रो। देन पब्लिक डेट मैनेजमेंट है, फिर यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी एंड इम्प्लीकेशन में आपको FRBM वगैरह से भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो दिस वी विल सी। फिर आता है मनी बैंकिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली यू गाइज हैव डन इन मैक्रो। तो मैक्रो में इसको हम पढ़ते हैं, बट फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस इफ यू रिलेट इट विद द इंडियन इकोनॉमी, तो दिस टॉपिक विल बी कवर्ड अंडर इंडियन इकोनॉमी, यू डोंट हैव टू वरी कि इंडिया में कैसे मनी सप्लाई होता है, क्या रेगुलेशन है, कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। यू शुड नो दैट सेबी रेगुलेट्स कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय RBI, ठीक है। इसके दोनों के फंक्शंस पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, तो यह आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा मनी एंड बैंकिंग का। फिर आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लिटिल बिट कम्प्लेक्स, दे हैव नॉट रिटन थियरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे हम लोग नियरली 10 to 12 थियरीज पढ़ेंगे, जिससे भी क्वेश्चंस आते हैं कमिंग फ्रॉम द क्लासिकल थियरी, एडम स्मिथ से लेके आपके जी भी थे, रिकार्डो वगैरह थे, फिर माल्थस के थियरी थे, फिर आपका लेविस का आ जाएगा लेबर सरप्लस वाला थियरी, फिर फारेनिस थियरी है, बैलेंस ग्रोथ, अनबैलेंस ग्रोथ, कुजनेट्स कर्व, फिर नर्स का दिया गया था विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो ईच एंड एवरी थियरी विल सी इन द डिटेल एंड इट्स मैकेनिज्म, बट इन एग्जाम बेसिकली दे आस्क विच थ्योरी वाज गिवन बाय whom and what are the limitations and assumptions of theory. These are the basic they ask, but we will see in the detail, no need to worry. Then comes environment and demography. ये मेनली इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में आपको पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी का क्या पॉपुलेशन है, क्या फर्टिलिटी है, कितना आपका 2011 से लेके अभी तक चेंजेज हुए हैं, पॉपुलेशन रेट वगैरह, दीज थिंग्स दे हैव एक्चुअली आस्क्ड मेनी टाइम्स। मैच द फॉलोइंग में एज स्ट्रक्चर में किस तरह का आता है, जैसे कभी कभी आप देखोगे तो एज स्ट्रक्चर जो आपका यहाँ पे बेस ज़्यादा हो जाता है, ऊपर कम आता है। इसका क्या मतलब है कि एट लोअर पोजीशन यू हैव मोर पीपल, बट एट हायर पोजीशन पीपल हु इज 80+ और समथिंग लेस पॉपुलेशन, ठीक है। ये अभी इंडिया का कंडीशन है। फिर आता है एक हमारा यहाँ पे हल्का बल्जीनेस आएगा, वहाँ पर ऊपर कुछ रहेगा, यहाँ पर कुछ ऐसे रहता है, यहाँ पे हल्का, यानी कि आपका जो इस बेज का है, बीच वाले एज का पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दोज थिंग्स, तो विल बी कवर्ड अंडर द डेमोग्राफी, नो यू नीड नॉट टू वरी। फिर इन्वायरमेंट के मेजरली 2 टॉपिक हैं। एक वैल्यू बेस्ड होता है, दैट हाउ यू गिव द वैल्यूएशन टू द इन्वायरमेंटल गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स। एक होता है यूजर वैल्यू, एक होता है नॉन यूजर वैल्यू, ठीक है। इसी के बेसिस पे देयर आर डिफरेंट 5-6 टाइप्स एंड वी विल कवर इट। फिर है आपका लास्ट टॉपिक इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में क्या होता है आपका, बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस टाइम 18 to 19 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, एंड आई कैन गारंटी यू इफ़ यू वॉच माई लेक्चर ना, दिस इज द वन ऑफ द लेंथीएस्ट टॉपिक। इफ यू वॉच माई लेक्चर्स सप्लीमेंटेड विथ आवर क्लास नोट्स, no need to read any book, trust me, no need to read any book, but we will start from book collection ki what book should we follow. Trust me, to clear JRF watching lecture is not enough. Watching my lectures, it has to be supplemented with books, basic books I am telling you. So for Indian economy you can refer Misra and Puri, it has to be supplemented by either Ramesh Singh or Nitin Singhania. Both PDF book will be provided in the class group if it has not been provided, ठीक है। इतना ही इंडियन इकोनॉमी में आपको करना है। एंड इन आवर क्लास व्हेन budget or survey is published, and if exam is in the January, so most probably exam will be in January 2024 or last week of December, so we will revise budget and survey notes also, that I will give the specific 1 hour or 2 hour lecture. Environment and economics में आपको बुक नहीं पढ़ना है, my lectures, class notes and mock test I will provide for each and every topic, you need not to worry, will be enough. Growth and development के लिए if you are very much interested, I can say कि from the exam perspective you can look for ML Jhingan, ठीक है। ML Jhingan बुक है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की, it has to be supplemented by AP Thrilwal, that is enough. However our lecture will be sufficient supplemented with PYQ. मनी एंड बैंकिंग के लिए एक बुक आती है SB गुप्ता की, बट उसको आप छोड़ भी दोगे तो यह मैक्रो का पोर्शन है, इंडियन इकोनॉमी में एंड मैक्रो में यह कवर हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, नो नीड टू रीड स्पेसिफिकली।
फिर पब्लिक फाइनेंस के लिए लोग एच एल भाटिया पढ़ते हैं, मुसग्रेव एंड मुसग्रेव पढ़ते हैं, तो यू कैन रेफर एच एल भाटिया टॉपिक वाइज, इट्स मोर देन एनफ। देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सल्वाटोर, और कोई बुक आपको नहीं पढ़ना है। पीपल विल रेफर की क्रूगमैन पढ़ लो, ये पढ़ लो, बट सल्वाटोर, डोमिनिक सल्वाटोर, आई एम राइटिंग द नेम, मेनी पीपल विल गेट कंफ्यूज कि सर आपने नाम नहीं लिखा, बुक का नाम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, डोमिनिक सल्वाटोर। And whatever books I told na, all PDF is available. I will be providing, you either text me or I will send to the group. Okay, all PDF are available. If you're interested to read in offline physical, you can purchase, no problem. Then mathematical economics ki for the UGC net purpose, I think AC Chiang is more than enough, or you can supplement with Bloom or so many books. AC Chiang is more than enough for optimization and mathematics. Statistics or econometrics की basic book है, however class lectures and note will be enough. But if you are interested econometrics के लिए आप गुजराती, दामोदर गुजराती पढ़ लेंगे, DG दामोदर गुजराती, एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए गुप्ता एंड कपूर बुक, येलो कलर की बुक है, टॉपिक वाइज, डोंट गो इनटू दैट डीप, जस्ट टॉपिक वाइज। मैक्रो की ऑल टाइम माई 2 फेवरेट बुक है फॉर UGC नेट एग्जाम, दैट इज रिचर्ड फ्रोएन एंड HL आहूजा मैक्रो। ओके, this you can do. However, many people read so many books, like you can read Mankiv, you can read Dubedi, you can read that one more book I am forgetting, I think Dornvis Fisher. These are good books, no doubt, but if you are holistically covering, then I would say you can refer this HL Ahuja and Richard Froen. Microeconomics, देखिए microeconomics के लिए I suggest to read either 2 books, but 4 books all are my favorite. My all time favorite book is Pindyck and Rubenfeld, Pindyck and Rubenfeld. PDF will be provided. Then Kossianis book, very good for the market and consumer theory. Then comes few topics of HL variant, Halar variant, then HL Ahuja. But if you ask me, sir, if I want to pick one book which can cover majority of topic, then you can refer HL Ahuja advance. PDF will be provided or it's already provided. Advanced microeconomics, ठीक है। इसके बाद if you are looking for next book, then you can refer Pindyck and Rubenfeld. Pindyck and Rubenfeld will be enough. These 2 books is more than enough. But if you want to delve into more, if you want to dive into more economics, then Kossianis and other you can seek the help. Anybody has any doubt regarding books and topics? Now we will discuss basic of PYQ, which kind of questions they are asking and how to approach it. Anyone? Shall we move ahead? Guys, please. Yeah, Deepak. Yes, sir. So hope it's clear. समझ में आ गया मैंने अभी क्या बात करी, सारा कुछ। तो चलिए ठीक है, आई होप कि यू गाइज, आप शायद नए हैं तो आप स्टार्ट करेंगे। एंड इन माई क्लास वी हैव डन विद द मैक्रो के बाद अभी हमारा माइक्रो चल रहा है। आफ्टर माइक्रो वी विल स्टार्ट इधर ग्रोथ और इंडियन इकोनॉमी, एंड साइड वाइज पैरेलली आई एम ऑल्सो टीचिंग स्टैट्स के भी फ्यू क्लास हो चुके हैं। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास योर मैथ्स विल स्टार्ट, ठीक है, मैथ्स विल स्टार्ट, सो दैट कि यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग सच थिंग्स। और PYQ का आपका टेस्ट जो है वह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। वी विल डू PYQ बाय टेस्ट बेसिस, तो हम PYQ का टेस्ट करेंगे, एंड वंस सिलेबस इज डन देन वी विल डू यूनिट वाइज टेस्ट। अब हम थोड़ा देख लेते हैं हमारा, जस्ट ए मिनट, या क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे। दिस इज UGC नेट 23 पेपर, जून में जो हुई थी रिसेंटली। नेक्स्ट एग्जाम विल बी इन दिसंबर और जनवरी 2024 और दिसंबर 2023, ठीक है। सो काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, द थिंग इज दैट question, one second, yeah, let me just share. I think, yeah, this is the question. So here direct question from public finance, रामसे रूल क्या होता है, efficient taxation. If you see it, this is given in the book also, यह बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, so you don't have to worry. 80 to 90% क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्स फ्रॉम द बुक्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सी द प्रॉब्लम इज दैट दे आर आस्किंग 4-5 ऑप्शंस. इफ यू simply know what is Ramsey rule, you may not be able to solve. So if you know the detail of it, then only you can eliminate. So knowing details are very very important. फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, यह तो डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन है, जस्ट वी हैव सीन. यहाँ पे देखिए, जब आप देखोगे आई कैन शो यू इन द इंटरनेशनल ट्रेड, यस यहाँ पे देखिए है ना, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स यहीं पे आता है. रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स में ही हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन से यह कैसे रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा वही प्रिफरेंशियल ट्रेड, ट्रेड यूनियन, यही वही सारा वही ट्रेड्स है. तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है. अब स्पेसिफिक एरर से पूछा गया है. अब यह जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको हम स्टैट्स में भी पढ़ते हैं, इकोट्रिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
स्टैंडर्ड ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसी। अब इन्वायरमेंटल पॉलिसी में आपका सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है थेरेटिकल एस्पेक्ट EIA, environmental impact assessment, that we will do in the class as well. However, in environment you have to apply sometimes logic, और हमें यह याद रखना है कि there is a no negative marking in UGC NET. तो for paper 2 if there is a 100 question, try to attempt 100 questions and mark it 70 plus correct. ठीक है, नो कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा तो कम है, नो प्रॉब्लम. इफ यू डू 70 क्वेश्चन प्लस करेक्ट, 30 क्वेश्चन प्लस करेक्ट इन पेपर 1, JRF इज ऑलमोस्ट श्योर लुकिंग एट द नेचर ऑफ पेपर व्हाट दे आर राइट नाउ आस्किंग. फिर आपका राइवल नेचर, सोशल गुड, पब्लिक गुड, ये सब हम पब्लिक फाइनेंस में करेंगे. तो यह PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्लास ग्रुप में और ऐप पे भी अपलोड हो जाएगा. द सेम PDF आई हैव गिवन द एनालिसिस. यह डिफरेंट वाइज है, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C करके है, सो दैट कि वी कैन हैव ए बेटर आइडिया. अप्रॉक्स 20-30 क्वेश्चंस का मैंने 3 से 4 पार्ट बनाया है और यह आपको अपलोड कर जाएगा, हुआ जाएगा. एंड इफ समबडी वांट टू चेक देयर लेवल तो विद इन 2 to 3 days I will upload it in the MCQ quiz form. Okay, it will be freely, anybody can access it, even your friend can access, no problem, so that you can check ki in which section or in which subject you are lagging, because you guys are already done with the this graduate syllabus, because you guys are either in masters or you are passed in masters. So basic knowledge you have already done almost 60% of syllabus. So at least from the previous knowledge, if you can solve at least 40% of questions out of 100 na, trust me, JRF is very easy to you just if you give 2 months. ठीक है, अब आप लोग अपने आप के तरफ से या अपने तरफ से यह बताइए कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक ऐसा लगता है कि सर फ्रॉम दिस टॉपिक आई डोंट नो एनीथिंग. एंड इफ यू आस्क मी कि सर व्हाट आर द कोर एरियाज दैट आई हैव टू फोकस, आई मीन देयर आर डेफिनेटली कोर एरियाज ना फ्रॉम वेयर मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड. तो लास्ट ईयर मैक्रो से थे नियरली 18 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 वी आर टॉकिंग. ठीक है, एंड इंडियन इकोनॉमी से जो क्वेश्चंस थे इट वाज अगेन 18 to 19 क्वेश्चंस थे. तो 18 और 19 यहाँ देखिए 37 आपका यही हो गया. स्टैट्स से थे 3 क्वेश्चंस, इकोनोमेट्रिक्स से थे नियरली 5 क्वेश्चंस, मैथ्स से भी वही 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चंस थे. दैट्स इट. हो गए आपके कितने, 18 और 19 37, 37 5 42 3 45 50 to 60 क्वेश्चंस यहाँ से हो गए. रेस्ट क्वेश्चंस जो थे, रेस्ट 50 क्वेश्चंस जो थे वह थे आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से. फिर क्वेश्चंस थे कुछ इंटरनेशनल ट्रेड से थे, कुछ क्वेश्चन इन्वायरमेंट से थे एंड कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस थे. तो आई वुड सजेस्ट इफ यू हैव वेरी गुड कमांड ओवर दीज 5 sections means first is micro, because micro has some segment of public finance and welfare economics, so micro is very important. Then macro, Indian economy, growth development and maths and stat. If you have command of these 5 subject, trust me 80% out of 100 questions you can easily do it. तो आपको यहाँ पे कमांड करना है माइक्रो हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है. मैक्रो वी हैव ऑलरेडी डन. देन वी विल स्टार्ट इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, एंड बाय आई थिंक नेक्स्ट मंथ वी विल फिनिश दिस बोथ. तो ठीक है, देखिए ये सब करंट अफेयर्स हैं डायरेक्ट. इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है, बिकॉज वी विल डू लॉट्स ऑफ मॉक. और इंडियन इकोनॉमी वी विल डू इन क्रोनोलॉजी विल स्टार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश एरा एंड विल डू टिल 2023. ठीक है, नो नीड टू वरी. एनी डाउट गाइज? Because today I thought of having a orientation session that what are the syllabus, what are the nature of question. So I just put, if you guys have any doubt you can definitely ask. Yeah. सर इकोनोमेट्रिक्स और स्टैट्स के लिए बुक्स चाहिए या लेक्चर काफी? नहीं, लेक्चर तो मैं दूंगा ही, लेकिन अपने तरफ से आप अगर सेल्फ स्टडी कर लेते हो तो स्टैट्स से गुप्ता एंड कपूर आप कर लोगे. However लेक्चर और मेरे नोट्स होंगे, डोंट वरी. Why do you forget? Notes I will provide ना, my own hand written notes. ठीक है, तो दैट यू कैन डू एंड इट हैज़ टू बी सप्लीमेंटेड बाय PYQ को आप डिटेल से करोगे तो वो काम चल जाएगा. और देखो क्या करना है बुक्स में, पहले आपको ये 4-5 एरिया को फोकस करना है. माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थोड़ा बहुत मैथ स्टैट भी. ठीक है, ये 4-5 एरिया कवर हो जाए, इसके बाद कहीं ज़्यादा एनर्जी देना है. मेजोरिटी ऑफ टाइम आपको इस पर देना है, बाकी क्लासेज, लेक्चर एंड नोट्स वगैरह एनफ है. ठीक है दीपक जी, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना. बस अपने आप को 2 चीज़ें करना है. एक तो आपको अपडेट रखना है कोर्स के साथ, जो मैं लेक्चर लेता हूं उसको आप अपडेट रखो, और जो मैं टॉपिक क्लास में बोल देता हूं, वट एवर टॉपिक आई टेल यू, यू प्लीज रीड दिस टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक और दिस चैप्टर, जस्ट यू डू दैट, यू विल डेफिनेटली गेट JRF. ट्रस्ट मी. फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होगा कोई बात नहीं है, सेम थिंग यू कैन रिवाइज इन सेकंड सेमेस्टर में हो जाएगा. बिफोर मास्टर्स मेक श्योर कि आपका JRF हो जाए,
क्योंकि यू कैन परस्यू रिसर्च बिकॉज यू विल हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपको पास 30-40,000 पर मंथ मिलेंगे, तो यू विल हैव मोटिवेशन फॉर रिसर्च। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, प्राइवेट जॉब की कोई गारंटी नहीं है, प्राइवेट जॉब में आपको भी वही 5 लाख का प्लेसमेंट मिलेगा, तो हार्डली यू विल गेट 35 to 40,000 सैलरी, और उनमें कोई गारंटी नहीं है। तो दैट्स वाई रिसर्च शुड बी प्रमोटेड, एंड इफ यू हैव पैशन डेफिनेटली यू शुड डू रिसर्च, एंड इवन इफ यू डोंट हैव पैशन एज ए कैरियर बैकअप यू कैन टेक इट ना, बिकॉज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज नेट एग्जाम इज कंडक्टेड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, एंड नाउ यूजीसी हैज टोल्ड कि जो भी बच्चे नेट क्वालिफाइड रहेंगे वो डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो देर इज ए चांस, आई नो देर इज ए मिथ कि वो लोग पीएचडी वाले को लेते हैं, बट देर इज अपॉर्चुनिटी ना, तो डोंट मिस इट। एंड जस्ट आफ्टर मास्टर्स हु नोज यू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि आफ्टर मास्टर्स ना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक द एग्जाम, बिकॉज मोर देन 50 to 60% सिलेबस ऑफ नेट JRF इज फॉर यूजी। यूजी का मतलब है MA इंट्रेंस का। ओके, तो इट वाज द ऑल डिटेल्स व्हाट आई डिस्कस्ड। चलिए फिर मधु। यस सर। ठीक है, फिर मिलेंगे, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, मंडे को होगा हमारा नेक्स्ट क्लास। यूजुअली व्हाट यू वी वर डूइंग माइक्रो, वी विल स्टार्ट माइक्रो में हम करेंगे कंज्यूमर थियरी कंटिन्यू। प्लीज वॉच ऑल द प्रीवियस लेक्चर दैट इज मैक्रो और माइक्रो जो रनिंग चल रहा है। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू गाइज, गुड नाइट सर। गुड नाइट, ओके ओके। So it was guys all detail, and course fee is very less. The course details here you can see that I have started the course is running, few lectures has been done, course will be finished before the 10 days of whole syllabus. Course fee is very less, it is entire India, and course will be valid till the exam. No need to worry, you will be given mock test, notes, each and everything, you don't have to worry guys. So please stay tuned, please subscribe the channel, and please join the course link is given below, and please watch free demo lectures, 8 to 10 free demo lectures, link is given below। ऐप पे भी दिया हुआ है फ्री लेक्चर्स, नोट्स वगैरह भी है, एंड आफ्टर देन इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, फर्स्ट you watch demo, if you really like the demo lectures then you join, and please suggest to your friends, because I have kept fee minimum so that other people can also learn. So thank you guys, stay tuned with me, and bye bye, take care, see you soon in the class. Okay, for any doubt you can comment below or you can contact us on the given details. Chalo, bye bye.